How many are absent? First of all, I'm saying those who are not attending the class, only 22 are attending. Here. Laiba Noor, not attending the class. Hamza Qamar, not attending the class. Mera, not present. Then it's Masab also not present. Kabir, Sanskrit student or Urdu student Kabir, not present. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Nabira Naz, not present. Abdul Ahad, not present. Remaining others. Afifa is here, Afshan is here, Alfia Hanif is present, Altamish is sitting with us, Aska is with us, Daniel is there, okay, Faraz is present, Huda present, Humaira also present now, Humza, Iqra Parveen, Laiba also joined, good, Manal also joined, Mansab also, then Shaviz also present, Atif is present, Ayan present, Faiz, Hazik also present, good, Imran also connecting. Imran is not present yet. You should connect fast. Kokab Haseen present, Ma Siddiqui present, Shayan is present, Shazan is present, Nabira is present, Rimsha is present, Sana is present, Shumain present, Tayyab is present, Zanalim also present. Okay, total 30 students are with us. Now see fast, this is your Urdu book I'm showing you. All can see the book. Take a screenshot of this. See on your screen. All can see the book Ashrafi Urdu. Yes, sir. Class 8, you have to buy this book today itself, Ashrafi Urdu. This book will be applicable for your academic session, and 4 lessons will come in unit test. Syllabus is 4 chapter in unit test, 7 chapter in half yearly will come. Okay. All have Sir, taken a please repeat. screenshot of this. Sir, please repeat I have syllabus. said syllabus is 4 chapters of this. I'll show you index. Here are 4 chapters. Number 1 chapter is Dua Nazam. Then Hum और हमारे घर, second chapter. जब मैं तालिब इल्म था, ये third chapter है. और गर्मी, ये fourth chapter है. These 4 chapters are coming in your unit test. ये 4 chapter हम पढ़ेंगे, इसके word meaning और जो मैं बताऊंगा short question, उस हिसाब से आप तैयार, ठीक है? आसान book है, it's very easy book. In other schools, it is used in 4th class. Those who are like we can say mentor circle, such books are started in 4th. So we are starting in 5th class. That's why 4th number is for you. Number is written 4 on the book because first number is for class student. Just wait. Second number is for 6th class students. Third number is for 7th class student, and 4th number is for 8th class student. Now ask. Now say. Sir, what it is cost? What is this? Cost. Yes. I don't know what is here. In my book, cost is not mentioned. It can be near about 170 or 180, I think. Sir, 175. If you have. Sir, yes. Okay, very. So you can take this much money to that bookstore and can buy. Okay, all clear now. Should we start the chapter? We have very less time. We have already lost 2 weeks. We have not done this book, so I will be going little speedily. Is there any problem to anyone?
For completing your work, you can take a screenshot. Okay, there are hard words. First of all, sabak number 1, dua. All put your finger on screen. If you don't, otherwise you can write this hard word also in your copy. All have to write this hard word, which is hard word also, and poem also you have to write. So take a screenshot of this so that you can write. I will read for you. First word, जीम. हे अलिफ नून गुन्ना, जहां काफ लाम और शीन मिलाया है. फोकस, आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड. फर्स्ट वर्ड जहां. सेकेंड, गाफ के साथ देखिए लाम मिला है, शीन मिला है, नून मिला है. गुलशन. हे है, काफ है, मीम है और ते है. ये होता है हिकमत. फिर है फे है, फे के साथ ये मिला हुआ है और ज्वाद है, इसे पढ़ते हैं फैज. फैज मतलब फायदा पहुंचाना. फिर लास्ट वर्ड है गाफ. गाफ के साथ फिर लाम मिला हुआ है, तीन है, ते है, अलिफ है और नून गुन्ना है. मिलाकर हुआ गुलिस्तान. हिज्जे कर कर पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी आपको पढ़ने में. ओके. Now poem first line. It is very easy from that poem which we have studied on last turn. If you have written that 8 lines in copy, that is also good. Okay. And those who forget, they can also write that poem also, so that they can come to know what happened in our first second period. In first second period we have taken another poem. Now in our third period today we are taking this poem. ए दो जहां वाले, ए दो जहां के वाली, ए दो जहां के वली, ए गुलशनों के माली. ठीक है. ए दो जहां के वली, ए गुलशनों के माली. वाली लिखा है, उसमें भी वाली को वली भी कह सकते हैं. वाली का मतलब वली से ही आया है, इसलिए हम वली पढ़ रहे हैं. ठीक है. वाली भी पढ़ सकते हैं प्रोनाउंसिएशन करने के लिए. ए दो जहां के वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज से, हर चीज से है जाहिर. फिर ये वाली लाइन है. ठीक है. हर चीज से है जाहिर तेरी ही, हर चीज से है जाहिर. फिर आगे है हिकमत तेरी निराली. अच्छा, सबसे पहला शेर बीच में दिया हुआ है, सेकंड शेर ये साइड में दिया हुआ है राइट हैंड साइड पर, फिर लेफ्ट हैंड साइड का पढ़ना है. 2 लाइनों का मिलाकर एक शेर होता है. एक लाइन को जो शेर की होती है उसे मिसरा कहते हैं. ठीक है. दोबारा पढ़ रहे हैं, देखो दूसरा शेर. हर चीज से है जाहिर तेरी ही फेज से है, तेरे ही फैज से है. हर चीज से है जाहिर तेरे ही फैज से है, हिकमत तेरी निराली. फोकस करिए थर्ड शेर पे. हिकमत, यहाँ तेरी आना चाहिए था ना, ये के नुक्ते नहीं है, इसमें लगाने पड़ेंगे. हिकमत तेरी निराली सरसब्ज डाली डाली, ये तेरी है. ठीक है. हिकमत तरी लिखा हुआ है, इसमें ये के नुक्ते ऐड कर लीजिए नीचे. ते के बाद ये का शोशा भी आएगा और रे आएगी. ठीक है. हो जाएगा तेरी. हिकमत तेरी निराली हर सब्ज डाली डाली. एक्सप्लेन करेंगे, पहले पढ़ना सीख रहे हैं फिर एक्सप्लेन भी करेंगे. ठीक है. सुनिए ध्यान से, उंगली रखकर. ऑल ऑफ यू कीप योर फिंगर. फिर है पत्तियों में तेरी रंगत, पत्तियों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली. ठीक है. पत्तियों पढ़ा जा रहा है, कैसे पढ़ा जा रहा है? पे है, ते है, तजदीद लगा हुआ है. जिस चीज पर तजदीद लगा हुआ होता है उसे 2 बार पढ़ते हैं. ठीक है. तो इस तरह से पढ़ा जा रहा है. पत्ती, सॉरी पत्ती नहीं है, पत्तों है ये. पत्तों में तेरी रंगत, ये इसमें नहीं है तो पत्तों पढ़ेंगे. पे है, ते के ऊपर तजदीद है और वाव है और नून गुन्ना है. मिलाकर हो गया पत्तों. पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली. नेक्स्ट शेर पर आते हैं.
ये नेक्स्ट शेर है, ये सिलसिला, ये सिलसिला जहां का, फूलों भरी जमी का। सिलसिला पढ़ा जा रहा है, देखिए ये सिलसिला जहां का। आसान है स्पेलिंग में वो करना, अपने 3 साल स्पेलिंग को अच्छे से अगर नहीं पढ़ा है तो अब भी आपको जल्दी जल्दी स्पेलिंग सीखनी पड़ेगी। जो बच्चे उर्दू में कमज़ोर हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जो बच्चे ज़हीन हैं उनको कोशिश करनी है कि वो और अच्छा पढ़ें। ये सिलसिला जहां का, फूलों भरी जमी का। नेक्स्ट शेर पर आते हैं, दुनिया के गुलिस्तां का। दुनिया देखो पढ़ा जा रहा है, दाल के ऊपर पेश है, नून है, ये अलिफ। दुनिया के गुलिस्तां का, तारों का आसमां का। ये सिलसिला है जहाँ का, फूलों भरी जमी का, तारों के गुलिस्तां का, सॉरी दुनिया के गुलिस्तां का और तारों का आसमां का। मीनिंग पूरा बताएंगे शेर बाय शेर, अभी पढ़ना सीख रहे हैं, साथ में पढ़िए। प्यारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। ठीक है, प्यारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। ये पोयम किसने लिखी है? अफसर। अलिफ है उसके ऊपर जज़म लगा दिया गया ताकि उस पर स्ट्रेस दिया जा सकता है, और पढ़ा जा रहा है अलिफ पे सीन रे। अफसर मेरठी, मेरठ के हैं रहने वाले, और नाम अफसर है इन पोइट का, यानी मुसन्निफ हैं ये। जो पोइट होते हैं उनको उर्दू में मुसन्निफ कहते हैं। तो ये आपको पोयम पढ़नी आ जाएगी। अब धीरे धीरे एक बार मीनिंग सुनेंगे मेरे साथ, शेर बाय शेर मीनिंग बताएंगे। एक शेर में 2 लाइन है, पहली लाइन को कहते हैं मिसरा और दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा कहते हैं। ठीक है, पहला मिसरा है इसका, ए दो जहां के वाली यानी वली, ए गुलशनों के माली। समझ में आ गया इस लाइन का मतलब? दो जहां क्यों कहा गया है? दो जहां इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी बिलीफ के अनुसार, हमारी बिलीफ के जरिए, जैसे हम मानते हैं कि जहन्नम और जन्नत ये 2 जहां हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं एक वो जहां जिसमें हम रह रहे हैं और एक वो जहां जो हमारा आखिरत का जहां है। उसमें जो अच्छे होंगे वो जन्नत में जाते हैं, और जो अच्छे नहीं होते हैं उनको जहन्नम में डाल दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं ये 2 जहां के वली। तो ये 2 जहां जो बताए गए हैं इसमें एक मुकामी यानी इस वक्त का जहां, और एक आखिरत। तो उसको कहा गया ये 2 जहां के वाली। अल्लाह ताला दोनों जहां का मालिक है, और पहली लाइन में पोइट बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इन दोनों जहां को पालता है, इन दोनों जहां पर उसी का हुक्म चलता है। ठीक है, एक गुलशनों के माली। गुलशन क्यों कहा गया है? गुलशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूरी जमीन सब्जे से भरी हुई है। सब्जा क्या है? हरी भरी दरख्त हैं, हरी भरी घास है, तो इन सबको कहा गया है गुलशन। गुलशन कहते हैं बाग बगीचों को। और ये ज़मीन अगर देखी जाए सब्ज़ों से भरी हुई है, वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, हर जगह अल्लाह की कुदरत फैली हुई है। तो इसलिए इसमें कहा गया है एक गुलशनों के माली। तो आप देख रहे हैं पिक्चर में भी बच्चे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह ताला आप दोनों जहां के मालिक हैं। आप जितने भी बगीचे हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी सब्जे हैं, यानी जितने भी फल फूल सब्जियां हैं, घास है, दरख्त हैं, इन सब के मालिक आप हैं। ठीक है, इन सब के माली आप हैं। माली कौन? जो देखभाल करता है बगीचे की। जिस तरह माली बगीचे की देखभाल करता है, इसी तरह अल्लाह पूरी दुनिया में जितने भी हरे सब्जे मौजूद हैं, जितने भी दरख्त मौजूद हैं, जितने भी पहाड़ मौजूद हैं, उन सबको पानी अल्लाह ताला की कुदरत से मिलता है। इसलिए अल्लाह ताला उन सारे गुलशनों के माली हैं। नेक्स्ट शेर पर आते हैं, हर चीज से है जाहिर, हर चीज से है जाहिर, तेरे ही फजल से है। हर चीज से जाहिर है, हर चीज से जाहिर। आप जर्रे से लेके पहाड़ तक कहो, आप चींटी से लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तक कहो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर हैं, कहो उनसे बड़ी मखलूक कोई नहीं है। उनका कद भी बहुत बड़ा है, और वो सबसे बड़े फरिश्ते हैं अगर देखा जाए तो उनके कद जैसा कोई कद नहीं है। सबसे छोटा कद चींटी का मान लो। तो वो कह रहे हैं हर चीज से है जाहिर। हर चीज को देख के हमें लगता है कि हम नहीं बना सकते, इंसान की कोई भी साथ नहीं है किसी भी मखलूक को बनाना। हर चीज को बनाने में अल्लाह ताला का हाथ है, अल्लाह ताला ही बनाता है, और उसी से ये कुदरत है। ठीक है, तो उसके लिए बोल रहे हैं
तेरे ही फजल से है, तेरे ही फजल से मीन्स अल्लाह के रहमो करम से है। वो चींटी हो, उससे बड़ा हम हो, इंसान हो, चरन परंद हो, जानवर हो, या बड़े से बड़े पेड़ हो, या बड़े से बड़ा जानवर हो, कह सकते हो कि डायनासोर ही क्यों ना हो, वो भी अगर हैं, या जो नहीं हैं वो भी जो थे अगर थे, तो वो भी सिर्फ अल्लाह के हुक्म से थे, और सिवाय अल्लाह के उनको ना तो कोई बना सकता है और ना कोई मार सकता है। बनाने और मारने वाली जात अल्लाह की है, तो उसका ही फजल है कि उसने इतनी बड़ी दुनिया को पाल रखा है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारी उम्र खत्म हो जाती है, हम इस दुनिया के भेद नहीं जान पाते, क्योंकि वो अल्लाह की कुदरत है और उसी के फजल से है। फजल मतलब रहम से है। I will ask you a doubt also. You listen first, then I will ask you doubt. If any problem is there in any word, you can underline it. फिर है हिकमत तेरी निराली। हिकमत क्या है? हिकमत कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की विजडम को कहा गया है, अल्लाह ताला की हर कहते हैं अक्ल को कहा गया है कि अल्लाह की कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी थिंकिंग पावर है उनकी, कि उनकी इतनी निराली थिंकिंग पावर, इतनी यूनिक है कि कोई उन तक नहीं सोच सकता, कोई इतने जितना नहीं सोच सकता। सरसब्ज डाली डाली, सरसब्ज डाली डाली, यानी अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है इस दुनिया को बनाने में, उनकी हिकमत है हर चीज में। सिर्फ इंसान समझता है, इंसान पढ़कर इल्म हासिल करता है, लेकिन उस इल्म को छिपाया किसने है? अल्लाह ताला ने छिपाया है। हर चीज में इल्म छिपाया है, हर डिपार्टमेंट में रिसर्च होती है। तो ये सारी रिसर्च जो है, ये रिसर्च करने के बाद ये इंसान जान पाता है कि उस चीज की क्या गहराई है, उस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और वो भी इंसान अपनी पूरी उम्र लगाने के बाद उस नन्ही सी चीज को बता पाता है। एक बैक्टीरिया है या माइक्रोब है, देखिए अभी फिलहाल ये वायरस चल रहा है, इसके बारे में भी इंसान नहीं जान पाया। तो कितनी बड़ी कुदरत है अल्लाह की, और जब जान पाएगा तो कितना वक्त लग जाएगा, कुछ नहीं पता। तो इसलिए कहा जाता है कि हिकमत तेरी निराली, सरसब्ज डाली डाली। जो चीज, जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है, इंसान की कोई भी साथ नहीं है कि वो एक पत्ती भी बना सके। तो जैसे अल्लाह ताला ने पत्ते, कितने सैकड़ों पत्ते बना दिए हैं, सूरज की रोशनी पड़ने से वो फैक्ट्री काम करने लगती है, फोटोसिंथेसिस होता है, नए पत्ते उग जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस, ये सारा निज़ाम सिर्फ उसकी पाक जात, उसकी बड़ी जात ही कर सकती है, जो सबका रब है, जो सबका पालने वाला है। ठीक है, तो बच्चे दुआ कर रहे हैं कि आपकी हिकमत बहुत निराली है अल्लाह ताला, आपके हुक्म से सरसब्ज सूरज जहां हरा भरा है, हर डाली हरी भरी है, तो वो तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। पत्तों को देखो, अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, कितने ब्यूटीफुल पत्ते होते हैं, कितने प्यारे लीव्स होते हैं। हर लीव्स की अपनी कुदरत होती है। लीव्स को समझने में ही हम पूरा चैप्टर निकाल देते हैं, है ना। हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अगर आगे पढ़ेंगे तो वो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अभी हम स्टोमेटा को थोड़ा जानते हैं कि स्टोमेटा से ऑक्सीजन इनलेट होती है। तो उसकी जो मैकेनिज्म है, उसका जो फंक्शन है, वो इतना बड़ा है कि हम उसको जल्दी से नहीं समझ पाते। और अगर हम समझ पाते हैं तब हम कहते हैं या अल्लाह, आपने कितना बड़ा निज़ाम बनाया है कि हमें समझने में उसको इतना वक्त लग जाता है। हम 10-20 साल में जाके उसको अच्छे से समझ पाते हैं, और जब समझ पाते हैं सिर्फ यही समझ पाते हैं कि ये सब अल्लाह की कुदरत है और ये सब अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह ने हर निज़ाम को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी अक्ल सलीम से बनाया है ना। बेहतरीन अक्ल है अल्लाह ताला। तो उसका जो कॉम्पिटिटर है वो कोई नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता अल्लाह। पत्तों में तेरी रंगत, तो बताते हैं कि वो सारी कुदरत, वो सारा जो बातें हैं वो पत्तों में छिपी हुई हैं। ठीक है, और फूलों में तेरी लाली। फूलों में तेरी लाली का मतलब है कि जिस तरह से फूल है उसमें कैसा रंग आता है, कैसे क्लोरोप्लास्ट अपना कम काम करना शुरू कर देता है, उसमें कैसे रंग डालते हैं अल्लाह ताला, इंसान के हाथ में नहीं है। ठीक है, ये सब अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह का नूर इन सब चीजों पर दिखाई देता है। इस बारे में ये पोयम है, ये दुआ है। आगे पढ़ते हैं। ये सिलसिला जहां का, फूलों भरी जमी का। ये सिलसिला जहां का मतलब ये पूरा जो सिलसिला चला आ रहा है, ये सिलसिला पेड़ों का उगना और पत्तियों का खिलना, या क्या हो जमीन, सारे जितने भी निज़ाम चले आ रहे हैं, तो ये निज़ाम जो है, ये निज़ाम हमें
ये निज़ाम हमें अल्लाह की कुदरत के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये सिलसिला जहाँ का फूलो भरी ज़मीन का, तो ये सारे मैकेनिज्म, ये सारे जो फंक्शन हो रहे हैं, ये अल्लाह के हुक्म से हो रहे हैं और ये सब अल्लाह की तारीफ बताते हैं। यही इस लाइन में बताया गया। दुनिया की गुलिस्तां का, तारों का, आसमां का, तो बता रहे हैं हर चीज़ की कुदरत को बता रहे हैं। वो सिर्फ ज़मीन को ही नहीं बता रहे कि ये सिलसिला जहाँ का पूरे जहाँ को बता रहे हैं कि दुनिया में ही नहीं, ज़मीन में ही नहीं, अल्लाह की कुदरत दुनिया के गुलिस्तां का, अल्लाह की कुदरत पूरे जो दरख्त पहाड़ फैले हुए हैं सब तरफ, उसके अंदर ही अल्लाह की कुदरत नहीं आती नज़र। अल्लाह की कुदरत तारों में भी नज़र आती है। तारे हैं और आसमां है, आसमां इनफाइनाइट है, हम उसको कभी नहीं छू सकते। तो ये सारी बड़ी चीज़ें जिनका गुमान इंसान दिमाग नहीं कर सकता, उसके बारे में अल्लाह की कुदरत काम करती है। लास्ट लाइन, प्यारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। तो फिर बाद में बच्चे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ये आपका सारा काम बहुत प्यारा है और आपका नाम भी बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो ये पोयम है, आई होप सबने लिख भी ली होगी हाथों हाथ सुनते सुनते। जिन्होंने लिख ली वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखी ये पोयम लिखनी है, हार्ड वर्ड भी लिखने हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्ड मीनिंग पे। चलिए पोयम में पूछते हैं पहले, कोई प्रॉब्लम? सर No, हार्ड sir. वर्ड, हार्ड वर्ड्स ऊपर दिए ना पोयम के बेटा? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन दिस हार्ड वर्ड? देखिए जहां मैंने पढ़ा था सबसे पहले, ये एक हार्ड वर्ड है इसका, गुलशन है, हिकमत है, फैज है, गुलिस्तान है, ये सारे हार्ड वर्ड हैं। 5 हार्ड वर्ड्स ऊपर दिए हुए पोयम के, दीज आर हार्ड वर्ड्स। सर ये पोएम में भी है। पोयम में भी हैं, कोई बात नहीं, इनकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ये आपके लिए नए वर्ड होंगे जो आपने 7th में नहीं पढ़े होंगे, इसलिए इनको लिखना आना चाहिए ना। आप लिखते हुए इन अल्फाजों को गलती कर सकते हैं, इसलिए इनको 2 बार लिखना है। सर जैसे किस बोलिए, एनी प्रॉब्लम फराज? नो प्रॉब्लम फराज। सर जो आपने No पहली problem. पोएम कराई थी वो क्या, कौन सी है? वो पोयम इतनी आपको कंपलसरी नहीं है, उसका आप पेज छोड़ दीजिए, जब आप स्कूल खुलेंगे हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है। एक पेज आप शुरू में छोड़ दीजिए, उसकी सिर्फ पोयम लिखनी है। वो हमने प्रैक्टिस करवाई थी लिखने की, उर्दू 2 पीरियड में। अब हमारे पास तब तक बुक नहीं आई थी, इसलिए हमने दूसरी बुक से लिखवाई थी, लेकिन अब बुक अवेलेबल है, तो आप पहले ये बुक लिखिएगा, ठीक है। ये पोयम लिखिए आप, इसका एक पेज छोड़ दीजिएगा, वो एक पेज में आ जाएगी। एक पेपर छोड़ दीजिए, बल्कि 2 पेजेस कह लीजिए बोथ साइड का, और फिर आप नेक्स्ट पेपर से लेसन डालिए, उर्दू की बुक का नाम डालिए, ठीक है, अशरफी उर्दू है ये आपकी, और फिर आप लेसन 1 डाल के, दुआ डाल के ये पोएम शुरू कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम, कोई वर्ड Okay, की sir. कोई प्रॉब्लम है किसी को? इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर अबाउट एनी वर्ड, देन प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी, सो दैट आई कैन sort out your problem. Now we are coming on word meaning. Should we come on word meaning fast? Many of you are not having book, इसलिए आज एक ही लेसन कराएंगे, फिर बाद में नेक्स्ट टर्न पर 2 लेसन कराएंगे, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. वी आर हैविंग लेस पीरियड, हमारे पास सिर्फ 3 पीरियड और हैं। इन 3 पीरियड्स में हमें यूनिट टेस्ट का सिलेबस पूरा करना है। 3 वीक्स के बाद आपकी यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएंगे। आफ्टर 3 वीक्स योर यूनिट Okay. टेस्ट विल स्टार्ट इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। So we have less time, we have to complete, so you have to hurry up, okay? If no problem, Okay, sir. we are coming on word meaning. See the word meaning now. I am sharing word meaning Okay. with you. These are the word meanings. All can see. अल्फाज और मायने, इसमें आपको इंग्लिश लिखनी है, हिंदी नहीं लिखनी है, उर्दू लिखनी है और इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। 2 चीजें लिखनी है। जहां का मतलब वर्ल्ड होता है, जहां को वर्ल्ड लिखेंगे। फिर गुलशन का मतलब फ्लावर बेड बोला है इन्होंने, फ्लावर बेड लिख सकते हैं, गुलशन को फ्लावर बेड लिख सकते हैं। और
फिर आपका थर्ड वर्ड है जाहिर। जाहिर को आप लिख सकते हैं क्लियर एंड एविडेंट। जाहिर को क्लियर और एविडेंट बताया गया है, ठीक है, वो आप कर लीजिए, दोनों वर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हिकमत है। हिकमत का मतलब विजडम है। जिनके पास बुक नहीं है वो ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जल्दी जल्दी लिख भी सकते हैं। हिकमत सिर्फ आपको उर्दू लिखनी है और इंग्लिश लिखनी है। फिर है आपका फैज और करम। फैज का मतलब ग्रेस और पिटी। ग्रेस यहाँ पर बताया गया है इस तरह से कि अल्लाह का ग्रेस है, यानी अल्लाह का कोई भी जो आराम पहुंचाने वाला काम होता है, फायदा देने वाला काम होता है, वो हम कहते हैं बाय गॉड ग्रेस, उनके फजल से। फिर है निराली। निराली का मतलब होता है यूनिक। फिर है रंगत। रंगत का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। फिर है वली। वली का मतलब, वाली मतलब है मास्टर और ऑनर। फिर है माली। माली मतलब गार्डनर, ठीक है, GARDNER। आई होप ऑल कैन सी। सिलसिला यानी तरतीब, और चेन कह सकते हैं उसको, दोनों मीनिंग लिख सकते हैं आप, ठीक है। सिलसिला तरतीब, क्योंकि दो वर्ड आए हैं तो उसके दो ही मीनिंग हो गए। फिर सरसब्ज यानी वर्डेंट। वैसे हरा भरा कहते हैं लेकिन आपको इंग्लिश याद रखनी है उसकी, वर्डेंट। इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। आप सीख जाएंगे कि सरसब्ज का मतलब हरा भरा होता है और उसे वर्डेंट कहते हैं, इसलिए इन्होंने तीनों लैंग्वेजेस में दिया है। आपको सिर्फ नोटबुक में उर्दू लिखनी है और इंग्लिश लिखनी है। आसमान, स्काई, ठीक है। आसमान स्काई को कहते हैं, सब जानते हैं, गुलिस्तान पार्क होता है। और जमीन आपकी पृथ्वी, यानी कि इसकी इंग्लिश लिख लीजिए अर्थ होती है। इसकी इंग्लिश दे नहीं रखी है, अर्थ लिख लीजिए। जमीन की इंग्लिश अर्थ, EARTH। आई थिंक ऑल कैन राइट इट, क्लास स्टूडेंट। स्पेलिंग ऑफ अर्थ इज EARTH। ये कॉपी में नोट कर लीजिए कि जमीन पृथ्वी यानी अर्थ। आपको बार बार बता रहे हैं हिंदी नहीं लिखनी है, ताकि आपका काम जल्दी पूरा हो जाए, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको सिर्फ दो लैंग्वेज लिखनी है। नाउ दर्ज झेल मिसरे। मिसरे से मुतबादिल से मुकम्मल कीजिए। मतलब दर्ज झेल मतलब नीचे दिए हुए। मिसरे मतलब आपको बताया था, फर्स्ट लाइन जो होती है शेर की उसे एक मिसरा कहते हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो मिसरे दिए हुए हैं, नीचे अधूरी लाइनें दी हुई हैं, इनको आप सही मुतबादिल, मुतबादिल कहते हैं वर्ड को, मुतबादिल कहते हैं, जो इसमें राइट वर्ड आएगा उसको मुतबादिल कहते हैं उर्दू में। मुकम्मल कीजिए यानी पूरे कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? उतार लीजिए पहला क्वेश्चन। अल्फाज है प्यारा है। क्या प्यारा है? अभी आपने पोयम लिख ली है, आप उसमें से देख सकते हैं। प्यारा है नाम तेरा या प्यारा है काम तेरा, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसमें काम तेरा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, प्यारा है काम तेरा। फूलों में, फूलों में क्या होगा? फूलों में तेरी रंगत, रंगत होती है। बल्कि सर लाली आया है पोयम, लाली आया है। यस यस, आई गॉट इट। फूलों में तेरी लाली, लाली ऑप्शन ठीक है, रंगत गलत है। थर्ड ऑप्शन ठीक है इसका। आई अंडरस्टूड हुदा, वेरी गुड। ओके, हुदा वाज करेक्टिंग मी, दैट वाज गुड एफर्ट। नाउ क्वेश्चन थर्ड, जीम वाला। हर चीज से है। हर चीज से क्या है? हर चीज से है जाहिर। हर चीज से जाहिर है अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है। तो जीम का फर्स्ट ऑप्शन है। ये दो जहां के, ये दो जहां वाली। के वाली लिखा है, वाओ अलिफ लाम, ये वाली लिखा है। तो वाली लिखना है, यानी थर्ड ऑप्शन पोएम में आया है। आपको पोएम याद भी करनी है और लिखनी भी है। ये आपका होमवर्क है आज का। इस पोएम को याद भी करेंगे और लिखेंगे भी। बाकी आपको कॉपी में जो करने हैं मैं बता दूंगा। पोएम लिखनी है, वर्ड मीनिंग लिखने हैं। ये चूज द करेक्ट नहीं लिखने हैं, फर्स्ट ऑप्शन चूज द करेक्ट है, ये आपको नहीं लिखने हैं नोटबुक में। आपको फिलअप्स भी नहीं लिखने हैं, जो आप कॉपी में लिख सकते हैं वो सिर्फ वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। बाकी सारा काम आपको बुक में करना है। ज्यादा आपका टाइम खराब ना हो, आप और भी सब्जेक्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा काम दे रहे हैं आपको
पोएम लिखिए, वर्ड मीनिंग लिखिए और क्वेश्चन आंसर लिखिए। क्वेश्चन आंसर से पहले आपकी सेकंड एक्सरसाइज है दर्ज झेल मिसरे सही लफ्ज से मुकम्मल कीजिए। फिर मिसरे आए हैं, ये आपको सही लफ्ज से मुकम्मल करने हैं। इनके ऑप्शन भी रखे हैं साइड में, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। फूलों भरी जमी का, फूल जो होंगे जमीन पर होंगे, आसमान पर नहीं होंगे, इसलिए जमीन को टिक कर लीजिए जिनके पास बुक है। और जिनके पास नहीं है वो, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो प्ले करके भी देख सकते हैं। मैं ये वीडियो यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ और यहाँ से वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। फूलों भरी जमी का, फिर ए दो जहां के वाली, फिर वाली आया है। ठीक है, ये ऑप्शन पहले भी आ चुका है, चूज द करेक्ट में दाल वाला था, इसमें बे वाला है। ए दो जहां के माली यानी सेकंड ऑप्शन ठीक है। स्पेलिंग ये दे रखी है साइड में, आप देख सकते हैं। फिर जी, प्यारा है डैश तेरा, तो दोनों में नाम भी आया है और काम भी आया है। पोयम में देखते हैं क्या है, पोयम में क्या आया है। प्यारा है काम तेरा और प्यारा है नाम तेरा। ठीक है, तो इसमें दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन ठीक है। प्यारा है काम तेरा भी ठीक है और प्यारा है नाम तेरा भी ठीक है। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, एप्लीकेबल हैं दोनों ऑप्शन, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों आपके सही जाएंगे। फूलों में तेरी लाली, ठीक है, लाली सही है, रंगत गलत है, इसलिए आपको लाली लिखना है। आई होप ऑल कैन राइट लाली। फूलों में तेरी लाली, क्लियर हो गया सबको? शुड वी मूव ऑन Yes, नेक्स्ट sir. एक्सरसाइज? Now we are on this page number 7. Okay then. पेज नंबर 7, दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए। इसमें आपको सवाल जवाब हैं, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको कॉपी में करनी है। प्यारा है नाम, प्यारा नाम किसका है? अल्लाह का। अल्लाह ताला का। ठीक है, अल्लाह ताला वर्ड आपने पहले भी लिखना सीखा है, अगर आपसे नहीं लिखा जा रहा है तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। प्यारा नाम अल्लाह ताला का है, जस्ट वेट। Sir, जी, sir, there are question answers in the book. In first chapter, you give from your side. some network issue was there, so I was not able to support. Now I'm just showing you अल्लाह ताला कैसे लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। All can listen me now? Hello. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, then I will show you अल्लाह ताला कैसे लिखेंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। It's on your screen now. अल्लाह ताला इस तरह से लिख सकते हैं आप। एक बार फिर लिखकर बता रहे हैं आपको, प्लीज नोट इट डाउन।
ऑल हैव सीन दिस? इस तरह से आप अल्लाह ताला लिख सकते हैं, ये आपकी Yes, sir. स्क्रीन पर है। ऑल गॉट इट? Yes, sir. Yes, पहले sir. क्वेश्चन में से लेंगे, प्यारा नाम अल्लाह ताला का है। ये थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। अब ये सही है, ठीक है। कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सी, इस नज़म में किसकी तारीफ की गई है? इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की गई है। तारीफ गॉट इट? इस नज़म में किसकी तारीफ की गई है? क्लास विल कंटिन्यू अप टू 45, ओके, डोंट गो नाउ, अप टू 11:45 विल कंप्लीट द क्लास। क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर दें फिर आपको छोड़ते हैं। इस नज़म में किसकी तारीफ की गई है? इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की गई है। दो जहां का वाली कौन है? दो जहां का वाली अल्लाह ताला है। सब में अल्लाह ताला लिखना है, इसलिए ध्यान से स्पेलिंग लिखेंगे, अल्लाह ताला की गलती नहीं करेंगे, साफ सुथरी लिखेंगे। फिर है, खुदा ने कौन कौन सी चीजें पैदा की हैं? खुदा ने कौन कौन सी चीजें पैदा की हैं? ये आपका पोयम में आया है, देखिए। जब आप पोयम खोलेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं खुदा ने क्या क्या चीजें पैदा की हैं। नंबर 1 पे आप लिखेंगे पत्ते, फूल, जमीन, आसमान, दुनिया, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं पोयम में, प्लीज सी दिस। कितने वर्ड्स आए हैं? पत्तों, फूलों, जहां, जमीन, दुनिया, गुलिस्तां, तारे, आसमां। ये सारी चीजें आपकी अल्लाह ताला ने जो जो पैदा की हैं वो हैं। आप लिख सकते हैं पत्ते, पत्तों लिखा हुआ है, ये बना दीजिएगा। अल्लाह ताला ने पत्ते, फूल, जहां, जमीन, दोनों का मतलब एक ही है वैसे, लेकिन आप अलग अलग लिखेंगे। जहां में यूनिवर्स भी आता है और जमीन में सिर्फ अर्थ आती है, ठीक है। तो दुनिया, गुलिस्तां, तारे और आसमान पैदा किए हैं। ऑल गॉट दिस आंसर ऑल्सो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ सी, दाल क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल में, दाल भी हो गया पूरा। Sir, yes. So this much is okay. Should we do next exercise also? We have still time. We have 1 minute still. दर्ज अल्फाज की जमा लिखिए। जमा मतलब होता है प्लूरल। पत्ता, पत्ते, तारा, तारे, गुलिस्तां, गुलशन, गुलशनों, फूल, फूलों। जो लिख सकते हैं वो लिख लेंगे। होमवर्क डाल दीजिए, ऐसा करेंगे। ये होमवर्क डाल दीजिए। ग्रामर स्टडी आपका एग्जाम में नहीं आएगा फिलहाल। ग्रामर स्टडी हम आपको हाफ ईयरली में देंगे, इसलिए हम भरवा देंगे आपका, लेकिन आपको याद नहीं करना यूनिट टेस्ट के लिए, ग्रामर स्टडी नहीं याद करना, ठीक है। कवायद ज़बान आपके हाफ ईयरली में तो आ सकते हैं, यूनिट टेस्ट में कवायद ज़बान आपके नहीं आएंगे, क्योंकि हम आपका सिलेबस थोड़ा शॉर्ट कर देंगे जिससे कि आप जल्दी तैयारी करें। गॉट इट? सो एक्सरसाइज फर्स्ट। There are 3 chapters coming. 3 chapters coming in unit test. 4 chapters are coming. Who said 3 chapters? 4 chapters Sir, for 8 no, I class. am asking. You're asking. Then I'm replying you, my dear. In beginning also I replied you. We'll cover a 4th chapter. Chapter बहुत easy है। पहली पोएम देखो एक ही दिन में हो गई। अगली बार जब सबके पास बुक होगी तो हम थोड़ा और स्पीडली करेंगे। Then we'll cover up to 3 chapters, and then last period I will complete your 4th chapter also. ठीक है? Okay. If any problem is there, then please raise your hands now. I am waiting for doubts now. This is the doubt time. Anybody have any problem, then please ask. Afifa, no problem बेटा, कर लेंगे। जी सर, कर लेंगे। अफशान अली, any problem? No problem.
आवाज नहीं आ रही अफशाना। अल्तमिश नो प्रॉब्लम बेटा। अल्तमिश अंसारी कोई परेशानी है? अल्तमिश नजर नहीं आ रहे। अस्का एनी प्रॉब्लम बेटा? अस्का को कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। Sir, no. दानियाल यू हैव एनी प्रॉब्लम? Sir, no. फराज, Sir, no problem. Huda, anything to Sir, clear no more? problem. Very good. Then Humaira. No, sir. Okay. Hamza beta, any problem? No, sir. Iqra Parveen, do you have any problem? Sir, question answer. What is third one? Question answer, what is third one? Third one, Jeem. दो जहां का वाली कौन है? दो जहां का वाली अल्लाह ताला है। ठीक है बेटा। सेकंड इकरा, Yes, एनी sir. प्रॉब्लम बेटा? अदर इकरा, और कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नाल से एनी प्रॉब्लम बेटा? Sir, no. Mansab, do you have any issue? No, sir. No, sir. No issue. Ayan, No, sir. Faiz, No, sir. Hazim, Kokab, Hazim, कोई परेशानी है बेटा उर्दू में? No, sir. कोकब, शयान, No, sir. शजान, कोई प्रॉब्लम है No, बेटा? sir. नबीरा, No, sir. रिमशा, No, sir. सना, No, sir. शुमाइम, No, sir. सिमरा, No, sir. तैयब। No, sir. ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को, देन वी आर क्लोजिंग द क्लास। आपको अगर एक बार फिर देखनी होगी क्लास तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आफ्टर 5-6 hours it will upload. ठीक है, it will take time because it is recording on server. As soon as it will come up, I will upload it on YouTube so that you can easily do it. वीक में एक ही पीरियड हो रहा है, इसलिए उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड देन when school will open, I will call you for checking also. So we are closing the class now. Prepare for another class. Good morning all of you and goodbye.